welcome to JIRGA. आज हमारे साथ who have joined us is Bilal Qureshi. He is an aviation geek, and speaking of aviation geek, he has founded Aviation Geek. He's an aviation analyst, and Bilal, thank you so much. Welcome. Thank you so much for having me, Hassaan. No, yeah, it's been a pleasure. Yeah, Bilal, if you don't mind, just brief us in about your link to aviation. Why aviation, basically? I belong to Abdabad in Pakistan, the northern areas, if you know. So we used to travel from Jeddah to Islamabad on and off Saudi Airline पे या PIA पे. So we used to fly those 747 classics at that time. उस टाइम तो हमें पता भी नहीं होता था कि 747 या Queen of Skies क्या होती है. So आज वो एक ख्वाब बन गया क्योंकि the airlines have scraped them. So उस टाइम से लेके उस वक्त इंटरेस्ट बस ज्यादातर लोगों का जो इवन काफी सारे लोग इसी वजह की इसी रीजन की वजह से पायलट भी बने. बट फॉर मी becoming an airline pilot was not the thing. My father wanted me to have a degree and I wanted to study something from aviation. We had differences. I wanted to go to Emirates Aviation University in Dubai, but my father said ऐसी जगह पे जाओ जहां पर हम फॉरेन पहुंच सके. मैं इसलिए मैं थोड़ा हो गया था. मैंने कहा I know about that place. that was the problem at that time. तो फिर यही था कि बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स को मना के तो मैंने लाहौर का रुख किया एंड देन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन एविएशन मैनेजमेंट. और ऑन एंड ऑफ आई यूज्ड टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग एकेडमिक्स एज वेल, डिग्री के दौरान भी. और उसके बाद I had this opportunity to build. A lot of people don't know again, and I cannot take the name of the company as well because of the consent. But I was a part of building Pakistan's very own and very first, and in fact only aircraft detailing company in Pakistan. I am the only certified aircraft detailer in Pakistan, by the way, and not a lot of people know that. So because the consent is necessary, that's why I'm not taking the company name. But however, I was a part of that journey. Then in 2018 I had to move back again because of being इकलौता. तो फिर जब मैं यहाँ वापस आ गया, जॉब शुरू हो गई एक जगह पे, an express shipping company. Again, I cannot take the name. But since then, I'd been traveling within Saudi Arabia a lot. Right now I'm in Eastern Province. और बट जो मेरा ताल्लुक है एविएशन से वो नहीं छूटा कभी. मेरे अंदर से एविएशन कभी नहीं निकली. 2018 में इनफैक्ट 2017 में आई फाउंडेड एविएशन गीक्स एंड आई स्टिल वंडर. एविएशन गीक्स एक ऐसा लफ्ज है जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल होता है. हैशटैग #fgeek अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करो तो इट हैज more than 2 million posts, more than 2 million pictures. बट इस नाम से कोई प्लेटफॉर्म, कोई पेज या कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी जिससे वाकई एव गीक्स की बातें हो रही हों या कुछ ऐसा हो रहा है. सो आई थिंक इट वाज मेंट फॉर मी. अल्लाह ताला ने वो मेरे लिए रखा हुआ था. Although Aviation Geeks is not that kind of an established platform, but what I believe is that if you believe in something, it will work out. That is my passion. मैंने अपने पूरे पैशन से उससे स्टार्ट किया था और आज तकरीबन 5 साल होने वाले हैं. ऑन एंड ऑफ बहुत गलतियां की, बहुत कुछ सीखा, बट इट गेव मी अ लॉट ऑफ थिंग्स और अ लॉट ऑफ लेसन्स मेनली. सो इस वक्त ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान which talks about aviation, which highlights aviation issues, which educates people, which brings awareness in the society. I remember I'd say I believe 2 years something roughly ago, I am the guy who's interested in the commercial part of aviation. I am the passenger. ठीक है, मुझे बस मेरी सोच यहाँ तक जाती है कि यार if I'm traveling on this airline, यार कितनी सेफ है, क्या इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम क्या है. एज अ पैसेंजर टेंशन होती है यार, ये अपना एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैं रिस्क के सही ले रहा हूँ जाते हुए, पैसे सही दे रहा हूँ, मैं उस साइड पे हूँ. तो आई वुड ऑलवेज रिसर्च अबाउट यार डिफरेंट एयरलाइंस ब्ला. और मेरे जहन में हमेशा क्वेश्चन होता था कि यार कि why do I only get to choose from 2 or 3 airlines living in Pakistan?
So I was researching, and I remember I came across your channel, Aviation Geeks, and that time you were doing pretty well in terms of numbers and consistency. And I was like, yaar, isne sahi niche pakad liya, and I hope he goes on. And again, kudos to that. And speaking of aviation in Pakistan, अब ये question जो मैं, why we both of us are here, I was growing और यार मैं देख रहा था कि यार अच्छा इस कंट्री में इतने you have this much competition, is there this much competition, is there this much, and when I'm just going for domestic travel or something, मुझे सिर्फ 2 या 3 एयरलाइंस में चूज़ करने को मिल रहा है. Why? क्या इशू है? हम माशाल्लाह मतलब हमें जद्दा के अंदर, हज के अंदर हर जगह जगह पाकिस्तानी नज़र आता है, हम हर जगह बिखरे हुए हैं, पैसेंजर्स बहुत हैं वगैरह वगैरह. And I was like, yeah, why? And that's how I got into this. And I was like, yeah, let's get into into this conversation with Bilal. And around that time, I remember this. मुझे सिर्फ ये याद आता है कि यार when I was small and I would switch on the TV और मतलब कुछ ही कैरियर्स हैं यार हमारे, 2 या 3 उस वक्त कैरियर्स थे. And I would see PIA this, PIA that, PIA this, PIA that. कभी कवा, कभी क्रैश नहीं तो काला बकरा, इस तरह कुछ ना कुछ चल रहा था. इस तरह कुछ ना कुछ चल रहा था. सो and honestly, because on and off travel रहता था, I flew on PIA a few times, ठीक है, internationally, and it was okay, it was fine, not much expected, ठीक है. And speaking about PIA, when I came here to Pakistan, and मैंने जब recent इतने incidents देखे वगैरह वगैरह and all of this, and I was like, यार why, ठीक है. And speaking of PIA, it was मेरे हिसाब से here's where you correct us. I think we had a legacy back then, right? If I give a bit of establishment on PIA, बहुत पुरानी एयरलाइंस है, कुछ ज़्यादा लोगों को नहीं पता. इट वाज एज ओरिएंट एयरवेज एंड बैक इन 1946, ठीक है. कुछ हमारे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसके ऊपर हमें फ़ख्र है कि चलो 1962 में हमने वी हैड द फास्टेस्ट फ्लाइट फ्रॉम लंदन टू कराची, ठीक है. क्या नाम है, फर्स्ट कंट्री टू फ्लाई टू चाइना, ठीक है. और फिर जो कि मुझे सुनने में बहुत मिला कि यार जो एमिरेट्स का कोड है, जो के कोड है, वो इट्स बिकॉज ऑफ एमिरेट्स टू कराची एंड हाउ मच वी contributed to Emirates in terms of pilots, assistants, establishment. और उधर मेरा trigger start हुआ. And I was like, यार Emirates किधर, PIA ठीक है, ये क्या sentence मैंने सुना है कि यार ये that's how much we have contributed to Emirates. So what's your thought on this? What do you think? Yes, legacy थी, नहीं थी, and where were we back then? अगर कंपटीशन की बात की जाए पाकिस्तान में, तो अप अंटिल 90s आपके पास तो सिर्फ PIA का ऑप्शन था. उसके अलावा आपके पास कोई विद इन पाकिस्तान कोई कंपटीशन ऐसा नहीं था जो कि नोटेबल हो. उसके बाद 90s में ही आपके पास शाहीन एयर आती है, हिजवेरी एयर्स है, फिर उसके बाद आपके पास एरो एशिया आई, भोजा एरो एशिया और हिजवेरी ज़्यादा देर नहीं टिक सकी. दे हैड टू भोजा के साथ ऑन एंड ऑफ मसले चलते रहे. शाहीन क्योंकि फौजियों की थी, शाहीन फाउंडेशन की थी, सो दे मेड इट until mid 2000s. लेकिन फिर mid 2000s के बाद वो दोबारा उसकी जो है ना वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी टू सिबाई ब्रदर्स, सिबाई फैमिली. और जो सिबाई ब्रदर्स के फादर थे उन्होंने वो टेक ओवर किया था, फिर वो उनको इनहेरिट हुई सिबाई ब्रदर्स को. एंड देन वी नो इन 2018 द डिमाइज ऑफ शाहीन एयर. तो 2018 तक शाहीन एयर वाज गिविंग गुड कंपटीशन टू PIA. Any airline having less than 10 airplanes is very common in Pakistan. लेकिन शाहीन was the only private airline जो कि 19 जहाज लेके आई थी. अपने आखिरी दिनों में उनके पास 19 जहाज थे, जिसमें 330s, 320s, 319s, all Airbus fleet. They were very very good business model. और सिर्फ ये था कि उनके अपने ओनर्स नहीं चाहते थे कि उसको कंटिन्यू करना, that's why वो चले गए. That is my opinion. क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई विल नॉट गेट इनटू दैट. एज ऑफ नाउ पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है और रहा है कंसिस्टेंटली कि पाकिस्तान में अवलन तो एयर ट्रैवल नॉर्मल नहीं समझा जाता, जैसे कि एक मोड ऑफ ट्रैवल है, उसको एक लग्जरी समझा जाता है. ठीक है, आप अभी इसी वक्त आप किसी भी पाकिस्तानी एयरलाइन पे की वेबसाइट पे जाएं, आप कोई डोमेस्टिक रूट सर्च करें, आप उसका फेयर निकालें और उसके ब्रेकडाउन में जाएं, ऑप्शन होता है ब्रेकडाउन का,
आपको ऑन एवरेज 40% टैक्सेस मिलेंगे। यानी कि अगर आप 10,000 रुपए की टिकट ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ 4,000 रुपए आप टैक्स दे रहे हैं, और एयरलाइन का जो किराया है वो सिर्फ 6,000 रुपए है। उस And 6,000 रुपए में आपको sorry कराची to से cut you here. जिसमें ओके ओके गो अहेड। डू टेल अस दिस के डू यू थिंक कि वो जो चंक है 40%, क्या वो सच में जा रहा है टैक्स को, या दैट्स जस्ट देयर नहीं, फॉर? दैट गोज ऑफ कोर्स, ये जो अच्छा। एयरलाइंस हैं, दैट बिजनेस इज बेसिकली, इट्स नॉट कि आपने एक छोटा सा किराने की दुकान खोली या सुपर स्टोर खोली, सुपर मार्ट खोली, ऐसा नहीं है। आप पहले एसईसीपी में कंपनी खोलते हैं, एफबीआर में अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप फिर सीए से लाइसेंसेस लेते हैं, फिर आप कैबिनेट डिवीजन से जो है ना आप अपने लाइसेंसेस और उनकी अप्रूवल लेते हैं। सो इट्स नॉट लाइक एयरलाइन जो है ना टैक्स खाएगी, नहीं खा सकती वो। द प्रॉब्लम इज टैक्सेस हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सो वो 40% जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस ऑलवेज किल द इकोनॉमीज। ठीक है, सऊदीया में, जीसीसी कंट्रीज में अप अंटिल 2017 टैक्सेस थे ही नहीं। 2017 में आके पहली दफा वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि 5% पे इंट्रोड्यूस हुआ था। अब सऊदीया में 15% है, बहरीन में 10% है, बाकी सब में 5% है, कतर और कुवैत में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। उसकी वजह से भी बड़े प्रॉब्लम्स थे। लेकिन पाकिस्तान में जब आपने 40% टैक्स लगा दिया टिकट के ऊपर, यानी 6,000 रुपए की टिकट आपको 10,000 में लेनी ही लेनी है। अब आप फिर बात आ जाती है इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स में आप ये देखें कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास कितनी है जो कि एक्चुअली अफोर्ड कर सकती है कि वो 40% टैक्सेस पे करे और एयर ट्रैवल कर सके। सो वो जो आपकी मिडिल क्लास है बेसिकली, रिसेंटली एक सर्वे था, मेरी पॉडकास्ट जो है एविएशन आवर, उस पे अफसर मलिक साहब ने उसको कोट किया था। इफ यू वांट यू कैन टेक द क्लिप फ्रॉम देयर। उसमें उन्होंने हमें ये बताया था कि जो पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, जिसके पास $1 लाख से ज्यादा के एसेट्स हैं, एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी या कोई रेंटल इनकम या कोई भी, वो तकरीबन तकरीबन सिर्फ 2 लाख ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास $1 लाख से ज्यादा के एसेट्स हैं। अब अगर आप ऐसे लोगों की बात करते हैं जो कि जिनके पास सिर्फ 2 लाख हैं, यानी कि आपकी मार्केट पाकिस्तान में अफोर्डेबिलिटी जो है डोमेस्टिक की, वो सिर्फ इतनी है कि उसमें सिर्फ 2 लाख लोगों के लिए आपको जहाज चाहिए जो कि जिनको कम्यूट करनी है या जिनको ट्रैवल करना। फिर उसके बाद दूसरा मसला ये है कि एक तो मसला ये हो गया कि जी टिकट महंगाई बहुत है, खरीद नहीं सकते। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान में आपकी तकरीबन 60% से ज्यादा आबादी रहती है देहातों में, और जो देहात में बंदा रहता है या लेट्स से छोटे शहरों में या किसी भी शहर में रहता है, वो एथनिक है। अब इसका मतलब ये है कि वो जिस शहर में पैदा हुआ, उसी शहर में उसने तालीम हासिल की, उसी शहर में वो नौकरी या कारोबार कर रहा है। ठीक है, तो वो ट्रैवल उसकी नीड ही नहीं है। अगर बहुत ज्यादा उसकी नीड है भी तो वो ट्रेन या गाड़ी ले लेता है। वो एयर ट्रैवल, क्योंकि एक तो महंगा बहुत है और दूसरा ये कि उसकी नीड नहीं है, तो वो ट्रैवल उसको प्रेफर ही नहीं करता। अब जाके थोड़ा सा डायनामिक शिफ्ट आया है। उसकी वजह यह है कि आपकी जो पिछली गवर्नमेंट थी वो नॉर्दर्न एरियाज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही थी। उन्होंने स्कर्दू के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया, बाहर से बहुत सारे व्लॉगर्स को बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुला के उसकी प्रमोशन की कि जी आप इसको जो है एज कंसिडर करें, इसको क्या कहते हैं, मतलब इसको प्रॉपरली आप इसको कंसिडर करें टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा शिफ्ट आया है। आपने देखा होगा रिसेंटली, अभी पर लास्ट वीक में एयरडू ने टेस्ट फ्लाइट की है इस्लामाबाद से स्कर्दू की, और उसकी वजह यही है। आज से पहले तक, अब ये जो रूट्स कहलाते हैं ना, जो कि नॉर्दर्न एरियाज में है या छोटे छोटे एरियाज में है, ये रूट्स कहलाते हैं सोशो इकोनॉमिक रूट्स, और इन पे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन इन पे पीआईए के अलावा कोई और एयरलाइन फ्लाई नहीं करती। उसकी वजह यह है, हालांकि बाय लॉ, बाय पॉलिसी दे आर बाउंड टू फ्लाई, but they basically prefer not to fly but to break the law and pay penalty on that, because उनको फ्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन रूट्स पे लोड्स ही नहीं है, क्योंकि वहां से लोग कोई फ्लाई नहीं करना चाहते। दैट इज व्हाई द ओनली एयरलाइन इन पाकिस्तान ऑपरेट्स द एटीआर इज पीआईए व्हिच हैज अराउंड 40 सीट्स। क्यों? क्योंकि वो रूट्स प्रॉफिटेबल ही नहीं है। उनको सोशो इकोनॉमिक इसलिए बनाया गया है, सोशो इकोनॉमिक उसका नाम इसलिए है ताकि वो जो इलाके हैं वो कनेक्टेड रह सकें बड़े शहरों से। यानी कि अगर कोई वहां का छोटा मोटा जो बिजनेसमैन है वो
फ्लाइट पकड़े, लेट्स से सैदू शरीफ है सवात में, वहां से वो फ्लाइट पकड़े, वो लाहौर आए, लाहौर से अपना जो भी उसने ट्रेड के लिए सामान खरीदना सामान खरीदे, शाम की फ्लाइट में बैठे वापस चला जाए, या अगले दिन की फ्लाइट में बैठे वापस चला जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1 टैक्सेस बहुत ज्यादा है, नंबर 2 एथनिक ट्रैवलर, एथनिक लोग हैं ज्यादातर, जो लोग हैं वो बाहर ट्रैवल ही नहीं करते, अगर करते भी हैं तो उनके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन जो है वो ट्रेन या गाड़ी या बस ऑलरेडी अवेलेबल है, सो दे डू नॉट कंसिडर टू फ्लाई ऑन एन एयरप्लेन। सो व्हेन दैट हैपेंस, the airlines will never bring the aircraft, because airline के लिए जहाज की सीट को फिल करना मुश्किल है। और वो बेसिकली, मैं हमेशा अपनी जहां पर भी कोई डिस्कशन हो रही हो या पॉडकास्ट या कोई भी चीज हो, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एयरलाइन चलाना किराने की दुकान चलाने जैसा आसान नहीं है, कि जिस दिन आपकी बिक्री नहीं हुई आपने शटर बंद किया, आप अगले दिन आ गए, अगले दिन बिक्री हो जाए। एयरलाइन में प्रॉब्लम यह है कि बहुत बड़ा कैपिटल इन्वॉल्व होता है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत थोड़े हैं। लोग देखते हैं वॉल्यूम को, लेकिन वो बहुत थोड़ा है। तो बेसिकली व्हाट यू सेड बैक हियर इज़ के यार, एक रीज़न उसकी सबसे बड़ी ये है कि मार्केट में भी इतनी अपॉर्चुनिटी थी, दैट्स व्हाट यू से, कि मार्केट भी इतनी हमारी, इट वाज डिमांडिंग इनफ, सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई का लॉ है, तो उसका उसका भी एक पार्टिसिपेशन है, राइट। सो ओके, टॉकिंग अबाउट PIA, ठीक है, अब कीपिंग दिस इन माइंड वट एवर यू सेड, राइट, फिर PIA को एक लेगेसी मेंटेन करनी चाहिए थी, ठीक है, एक जिसके साथ उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, थोड़ा सा कंज्यूमर्स हमारा ट्रस्ट ब्रेक हुआ, राइट। एंड एक बिज़नेस जो होता है, ठीक है, एट द एंड इज़ फॉर प्रॉफिट बिजनेस, एक कंपनी जो होती है वो फिर उसका हम कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट उठाता है, उसका एक फ़ायदा उठाता है और फिर उसको इस्टेब्लिश करता है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई माइट बी रॉन्ग हेयर, ओवर द ईयर्स, स्पेशली इन द लास्ट 5 years, PIA के कंज्यूमर का ट्रस्ट ब्रेक ही हुआ है, दैट्स व्हाट आई थिंक, ठीक है। अब वाई डू यू थिंक दैट वेन एवर आई वुड ट्रैवल, ठीक है, अब मैं एज अ कस्टमर इधर बात करूँगा, मुझे 85% श्योर होता था कि मेरी फ़्लाइट डिले होनी है। इनफैक्ट कभी कभी वी वुड बी लेट टू द एयरपोर्ट और मेरे अबू कहते थे कि बेटा टेंशन ना लो, PIA है, डिले हो जाएगी, पहुंच जाएंगे, ठीक है। एंड आई एम क्वाइट ऑनेस्ट, बीइंग क्वाइट ऑनेस्ट। अब 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 कि कंज्यूमर ट्रस्ट मेरे हिसाब से क्यों ब्रेक हुआ है, व्हाट आई थिंक इज़ द सेफ्टी इश्यूज़ आपके आगे, ठीक है, मेंटेनेंस इश्यूज़ आपके आगे, थोड़ा सा कंज्यूमर ट्रस्ट। जाहिर सी बात है, एक बिजनेसमैन है, वो सुबह कराची जा रहा है, उसने कहा है कि शाम को मैंने फैमिली के पास वापस आना है। अब उसकी सुबह की फ़्लाइट 3 घंटे 2 घंटे डिले हो गई है और रात की, तो वो अगेन काफ़ी सेंसिटिव चीज़ होती है। नाउ बिफोर वी जंप इनटू दैट, we'll keep the short and simple. Do you think a government should own a private entity or a private airline like PIA? Okay, so सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने कहा कि जी PIA को अपनी एक लेगेसी मेंटेन करनी चाहिए थी, और हर एयरलाइन का एक USP होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। मैं आपको PIA का यूनिक सेलिंग पॉइंट बताता हूँ। इन 2022 आज भी PIA का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो कि किसी एयरलाइन के पास फिलहाल नहीं है, विच इज डायरेक्ट फ्लाइट। कि आपको कहीं भी जाना है, आप अगर आप ठीक है, अगर आपको वैल्यू फॉर मनी की ज्यादा कोई मसला नहीं है, आपको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए, तो बिस्मिल्लाह, आप हमारे साथ लाहौर से बैठे, हम आपको कनाडा में 10-14 घंटे में उतार देंगे, आपको दुबई, दोहा या अबू धाबी में कहीं उतरना नहीं पड़ेगा। सो PIA का यूनिक सेलिंग पॉइंट अभी भी है, और जिसकी वजह से PIA स्टिल कुछ थोड़ा बहुत रेवेन्यू गैदर कर रही है। दैट्स द वन थिंग। नंबर 2, PIA, sorry again, but that's a fact. Maybe शायद it's not a very conventional fact, but it is a fact. PIA की कोई लेगेसी नहीं है। Sure. PIA की सिर्फ लेगेसी ये है कि जो आप सुनते हो ना कि 1960s में तो जी बहुत अच्छी एयरलाइन थी, सेकंड बेस्ट एशियन एयरलाइन या व्हाटएवर। द रीजन बिहाइंड दैट इज 1960s में आपके पास कोई कंपटीशन था ही नहीं, ना तो उस वक्त कोई एमिरेट्स एग्जिस्ट करती थी, ना तो कोई उस वक्त इत्तेहाद एग्जिस्ट करती थी। रीजनल कंपटीटर्स में भी आपके पास कोई खास ऐसा कंपटीशन नहीं था। एयर इंडिया को आप वैसे ही जो है ना अपने पास नहीं आने देते थे। सो आपका पाकिस्तान में भी क्या, रीजन में भी कोई कंपटीशन नहीं था। सो यू डिड नॉट हैड समथिंग कि भाई आप, अगर आप बात करते हैं लेगेसी की, तो लेगेसी है KLM, which is a 100 years airline, जो कि
अपने आप को चेंजेस के साथ अपने चेंजेस को अडाप्ट करना जानती है। सिमिलरली अगर पीआईए समझती कि दे हैव सम काइंड ऑफ लेगेसी, दे शुड हैव अडैप्टेड द चेंजेस जो कि आज पैसेंजर एक्सपीरियंस के लिए जरूरी हैं। अप अंटिल मिड 2000s, मैं 2006, 7 और 8 तक की बात कर रहा हूं, जब तक आपकी जो डिक्टेटर गवर्नमेंट थी, आपके जो 777 थे, आपकी डिक्टेटर गवर्नमेंट आपको लेकर दे के गई थी बोइंग से, और आपको बोइंग से 777 इसी वजह से लेकर दिया गया था कि आप पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट चला सकें अमेरिका के लिए, जो कि आप आज तक नहीं चला सके। और वो 777 अपनी एज जो है वो पूरी करने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा अगले 10 साल, और उसके बाद आपको उनका अल्टरनेट ढूंढना है, जो कि इस वक्त आपके पास शायद नहीं है। शायद आप इसी तरह के और 777 लीज पे उठा लें, सब कुछ कर लें, लेकिन आप एक एयरलाइन नहीं चला रहे, आप बस ठीक है यार चल रहा है सिस्टम, बस ठीक है, ये सिस्टम ठीक है। है, ये फैक्ट है, और इसमें हम्म। कोई ढकी छुपी हम्म। बात नहीं है। हम्म। अगर इससे किसी की फीलिंग्स हर्ट होती है तो आई एम रियली हम्म। सॉरी, सबसे ठीक, दिल। नहीं नहीं, इट्स 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 ठीक है, इट्स द कम्प्लीटली नेक्स्ट थिंग फाइन। इज द हमारा जो नेक्स्ट यहाँ थिंग पे इज मोटो है, सॉरी काट रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा हाँ। मोटो है, इट्स टू गेट आउट समथिंग कंस्ट्रक्टिव, सेल्फ रिफ्लेक्शन, हम्म एक रिफ्लेक्शन हमारा हम्म मोटो है। सो हम्म कंटिन्यू। सो यस, सो द नेक्स्ट थिंग यू आस्क्ड इज के पीआईए का जो डिले का मसला है, गवर्नमेंट को और एयरलाइन ओन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब ये अगेन ये सबसे बड़ा इशू है और चैलेंज है हर गवर्नमेंट के लिए। हम ऑलमोस्ट हर दफा सुनते हैं, 2008 से लेके 13 तक भी हम थोड़ी बहुत आवाज सुनते रहे कि पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, फिर 13 से 18 तक भी सुनते रहे। 18 से आगे हमें कुछ और तरह की आवाजें आना शुरू हो गई कि जी पीआईए तो प्रॉफिटेबल हो गई है, पीआईए तो जी रेवेन्यू करने लग गई है। अब मैं सारे गुब्बारों में से हवा निकालूंगा। अगेन इट्स नॉट अगेन माय ओपिनियन, इट्स द फैक्ट। ठीक है, पीआईए पीआईए ने लास्ट टाइम जब प्रॉफिट पोस्ट किया था दैट वाज इन 2002 और 2001। उसके बाद से पीआईए इज कंसिस्टेंटली मेकिंग लॉसेस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूं कि गवर्नमेंट को ओन करना चाहिए या नहीं। अब देखें, एमिरेट्स भी गवर्नमेंट ओन्ड है, स्टेट ओन्ड है, कतर भी स्टेट ओन्ड है, इत्तेहाद भी स्टेट ओन्ड है, ओमान एयर भी स्टेट ओन्ड है, सऊदी एयरलाइन इज पार्शली स्टेट ओन्ड, कुवैत एयरवेज इज पार्शली स्टेट ओन्ड। ये भी स्टेट ओन्ड एयरलाइंस हैं, ये क्यों नहीं लॉस मेक करती? दुनिया में आप जिन एयरलाइंस की मिसालें देते हैं कि जी अमेरिकन एयरलाइंस है, ब्रिटिश एयरवेज है, ये तो देखें स्टेट ओन्ड नहीं है। स्टेट ओन्ड होने में कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ओन्ड के साथ साथ ओनरशिप लेना जरूरी है। जितनी एयरलाइंस जो मैंने आपको गिनवाई जो कि स्टेट ओन्ड हैं, वो अपनी एयरलाइंस की ओनरशिप लेती हैं। जैसे कि एमिरेट्स में जो एयरलाइन का ओनर है वो उस मुल्क का भी ओनर है, वो उसको ओन करता है। जब मैं बात कर रहा हूँ ओन करने की, तो वो उसको अपना समझता है। पीआईए में ऐसा कोई केस नहीं है। पीआईए में लोग सिर्फ, या आप कह लें कि जो डिवीजन है पूरी एविएशन की, बेसिकली इट्स कैबिनेट, कैबिनेट की एक जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में एविएशन का, वो है कैबिनेट जो है आपकी फेडरल कैबिनेट, उसकी एक डिवीजन है एविएशन डिवीजन, जिसमें आपका एविएशन मिनिस्टर होता है। उसके अंडर आपकी सिविल एविएशन अथॉरिटी, पीआईए, और इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। 3 ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर, और वो डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करती हैं कि जी आप इस तरह, क्योंकि पीआईए का मेजर स्टेक, गवर्नमेंट का मेजर स्टेक है पीआईए। सो दैट्स द स्ट्रक्चर। लेकिन क्या है कि ओनरशिप आपको कहीं नजर नहीं आएगी एयरलाइन में। द प्रॉब्लम विद पीआईए इज द ओनरशिप। अब यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी आप पीआईए को एक लेट्स से आज हम डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई बॉस बहुत हो गया, हमने पीआईए में आज भी पोटेंशियल है, भले जितना मर्जी कंपटीशन हो, जो मर्जी हो जाए, आपको सबसे अच्छा जो एज हासिल है वो आपकी जियो पोलिटिकल लोकेशन है। पाकिस्तान दुनिया के दरमियान में, ठीक है। इन 60s 70s 80s कराची वाज द choice of every airline to stop over for the refuel and the technical stop, जो कि यूरोप से ऑस्ट्रेलिया फ्लाई करती थी। आपके पास आज भी उस लेवल का एयरपोर्ट इस्लामाबाद एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स से आज हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने अपना एविएशन सेक्टर को रिवैम्प करना है, हम 2030 तक एविएशन सेक्टर से $10 बिलियन कमाएंगे। उसमें आपकी एयरलाइन भी शामिल है, आपके एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं, आपकी सिविल एविएशन अथॉरिटी भी शामिल है, सब शामिल है।
सो फॉर पीआईए पर्टिकुलरली, लेट्स से अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमें ये करना है, सो सबसे पहले तो आपको ये डिसीजन करना है कि आपने इसको आया स्टेट ओन रख के काम चलाना है या आपने प्राइवेटाइज करके करना है। इस चीज को हल करने के लिए अगर आपने इसको स्टेट ओन रखना है तो आपको डंडा फेरना पड़ेगा, और वो डंडा बगैर किसी रियायत के फेरना पड़ेगा आपको। ये जो एसोसिएशंस हैं, नो ऑफेंस टू एनीवन अगेन, सबसे बड़ा नुकसान जो है ये इन एसोसिएशंस की वजह से होता है एयरलाइन को, कि आप अपनी मर्जी के फैसले मैनेजमेंट से करवाएं, आप अपनी मर्जी के फैसले जो है वो इम्पोज करें, आप अपनी मर्जी के स्केड्यूल्स लें, आप अपनी मर्जी के पर्क्स लें, जब आपकी सैलरी ना बढ़ रही हो आप हड़ताल कर दें। आप ये इनमें से कोई एक चीज भी आप मुझे गल्फ की किसी एयरलाइन में करके दिखाएं, दूसरे दिन आप एयरलाइन में नजर नहीं आएंगे। सो आपको पहले अपना कल्चर को ठीक करना पड़ेगा, आपको डंडा फेरना पड़ेगा। भले अगर आपने स्टेट ओन रखना है तो आपको खुद फेरना पड़ेगा, प्राइवेटाइज कर दें तो जो प्राइवेट ओनर आएगा वो खुद ही फेर देगा। अच्छा, तो बिलाल अगर डंडे फेरने की बात की जाए तो इसके ऊपर आते हैं कि भाई डंडे फेरने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, राइट? लेट्स कीप इट दैट वे। Honestly speaking, there are a lot of cons, a lot of positive things. लेकिन अगर अवाम को सही इन्फॉर्म किया जाता तो ये नौबत ना आती, राइट? वी आर फ्रस्ट्रेटेड एज कंज्यूमर्स। क्या बैक एंड फोर्थ चल रही है, अकाउंटेबिलिटी किधर है, क्रेडिबिलिटी किधर है, इसका नामो निशान नहीं, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, because of safety we've had to face events we wish we would never face, ठीक है? We lost great personalities, ठीक है? Talking about great personalities, the famous, ठीक है, Junaid Jamshed crash जिसको हम कहते हैं the PK8661 crash, which was a tragedy, ठीक है? And चित्राल से इस्लामाबाद 2016 की बात है, and it was as we know, it was an ATR crash, right? So just some basic information to establish here. CAA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जी टर्बाइन ब्लेड में फ्रैक्चर था, ठीक है? ओवर स्पीड गवर्नर, चलो उसमें भी एक फ्रैक्चर्ड पिन थी, और कुछ कंटेमिनेशन थी जी PVM के अंदर, आपको जो प्रोपेलर वैल्यू मॉड्यूल होता है, ठीक है? ये ब्रीफ है उस डिटेल रिपोर्ट की। अब आप एक तरफ ये आप सुनते हो, ठीक है? आपका जेन में एक कस्टमर का पहला क्वेश्चन जाता है कि यार मैं एयरलाइन को पे कर रहा हूँ, एयरलाइन ने इस पर क्यों नहीं चेक रखा, राइट? वेयर इज़ द मनी गोइंग, राइट? अब आप चलो एक्सपेक्ट करते हो यार, ओके इट्स अ बिजनेस मेक्स मिस्टेक्स, चलो दे विल लर्न द नेक्स्ट टाइम, एंड वी नो दिस इजंट द फर्स्ट, वी विश बट इट वाजंट द फर्स्ट क्रैश ऑफ PIA, राइट? अब when I switch on the TV, I go like, यार अच्छा चलो CEO आएगा, he will take on accountability, chairman आएगा, he'll take on accountability, and यार मैं जब next time PIA पे fly करूँगा, it will be something different, right? CA ये रिपोर्ट देता है, ठीक है? उसके बाद PIA चेयरमैन की स्टेटमेंट आती है, वी आर फिट टू फ्लाई, ठीक है? एंड हमारे पास 11 ATR हैं और सारे रिलायबल हैं, और PIA से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो अनफिट प्लेन्स फ्लाई करें, right? So what is your say on this? So when that Junaid Jamshed crash had happened, may he rest in peace. That day I was in Lahore. शाम को कोई तकरीबन 3:30, मतलब मैं 3:30 को 4 बजे को शाम कहता हूँ because of being in Saudi. So at that time I just came back from university and I slept, and I woke up almost at 8, and when I woke up I got this shocking news that the ATR गिर गया, and coincidentally nearby my hometown Havelian. So it's just like 15 kilometers from my hometown, so I know that place very well. अगर आप थोड़ी सी PIA की हिस्ट्री को दोहराएं, पीछे थोड़ा लेके जाएं, आपको सीरीज ऑफ क्रैशेस मिलेंगे. PIA has the worst safety rating at this point of time. You are banned in US, you are banned in Europe. जो आपको थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट में भी आने दिया जाता है, वो सिर्फ इसलिए आने दिया जाता है क्योंकि मिडिल ईस्ट को आपसे बिजनेस मिलता है, लेबर मार्केट बहुत बड़ी है, उम्रा और हज बहुत बड़ा है, so they also have to make money, so they only give you some extra checks, but again they allow you to fly, that's it. So इसकी वजह मैं किसी स्पेसिफिक क्रैश में नहीं जाता कि उसमें क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, मैं आपको थोड़ा सा और डीप डाइव कराता हूँ कि इसकी वजह क्या है. इसकी वजह है आपके कौम का एज अ नेशन जुगाड़ पे चलने का माइंडसेट, कि जी
कोई भी काम है, ठीक है, जुगाड़, इट्स गुड थिंग, इट्स गुड, मैं इसको डिस्करेज नहीं स्किल करता, है। बिकॉज जुगाड़ इज अ स्किल। और ये सिर्फ देसियों में है, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज में, टू गेट अ यू नो solution to a problem out of the box, which is good. But when that solution of some problem involves human lives, you don't have any authority to play with them. You must go by the book. So I had a podcast a few days ago with the corporate safety manager of Serene Air. It will be live soon on my channel as well. I asked him the same question. Okay, so he quoted me an incident. I will quote it here as well. कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई उन्होंने किसी एक इंजन के जो है ना नट का नाम लिया था कि आप उसको जो है ना 2 स्पैनर से टाइट करते हैं। अब हमारे यहाँ जी जो है वो एक से ही टाइट कर रहे थे। जब हमें इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो हमने उसके लिए जो है ना एक सर्कुलर निकाला कि नहीं, आपने बाय बुक चलना है। 6-7 महीने तक वो चीज़ अवॉइड हो गई, लेकिन 6-7 महीने के बाद वो चीज़ दोबारा होनी शुरू हो गई। अब इससे हमें पता क्या चला, 2 वजूहत है। नंबर 1, एक तो ये कि आप ये देख, हमारे यहाँ कल्चर है, सिर्फ एविएशन में नहीं, हर जगह, कि काम जैसे चल रहा है चलने दो। पीआईए की फ्लीट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एमईएल पे चलती है। सो एमईएल इज नोन एज मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। इसकी एक बड़ी बहन होती है, उसका नाम एमएमईएल होता है, उसको कहते हैं मास्टर मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। जो मास्टर मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट है वो आपको मैन्युफैक्चरर बना के देता है कि ये जहाज XYZ फैक्टर के ऊपर मिनिमम कौन से लेवल्स हैं कि आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि लेट्स से एक जहाज में 8 दरवाजे हैं, ठीक है, और उसकी 300 सीटें हैं, यानी कि 300 पैसेंजर्स में बैठ सकते हैं। अब अगर 300 खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाती है, उन 8 दरवाजों के से कितने लोग एक दरवाजे से गुजर सकते हैं, उन 300 सीटों को आप 8 पे डिवाइड करेंगे, फिर जो आपके पास नंबर आएगा वो आपके पास नंबर होगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी इस एक दरवाजे से इतने लोग निकल सकते हैं। और जो दुनिया भर में रूल है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग, पानी पे या लैंड पे या कहीं पे भी, विद इन 90 सेकेंड यू हैव टू वेकेट द एयरक्राफ्ट। अगर खुदा ना खास्ता अब ये मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट या मास्टर मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट आपको ये बताती है कि अगर आपका कोई एक दरवाजा जो है वो ऑपरेट नहीं हो सकता या वो इनऑपरेबल है, तो जो आपने नंबर ऑफ सीट डिवाइड की थी 300 सीट्स को 8 दरवाजों पे, उस एक सीट के जितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं वो आप जहाज में नहीं बिठाएंगे। दैट इज द सेफ्टी एस्पेक्ट, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में लोग ज्यादा हो जाएंगे, आपके पास दरवाजे कम हो जाएंगे, तो जो 90 सेकंड का स्लॉट आप पूरा नहीं कर सकते। दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है। इस तरह की बहुत सारी जो है वो सिनेरियोज होते हैं मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट में। मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट जो है वो एयरलाइन खुद बनाती है, और इसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो जो मैन्युफैक्चरर है उससे ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर मैन्युफैक्चरर ने कहा है कि लेट्स से एक दरवाजे से 30 लोग गुजरेंगे, तो एयरलाइन बोलेगी कि नहीं, मैक्सिमम हम एक दरवाजे से 25 लोग गुजारेंगे। अच्छा, एयरलाइन ठीक की है, जो मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट होगी वो हमेशा एमएमईएल से ज्यादा होगी, कि समझ गया। जो मैन्युफैक्चरर ने आपको लिमिट दी है उससे थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। सो आपके जो पीआईए की मोस्ट ऑफ द फ्लीट है वो एमईएल पे चलती है, यानी कि उसमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कि मिनिमम्स को टच कर रही होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज अलाउड बाय द एमईएल मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, तो उसको जाने दिया जाता है कि ठीक है जी, एमईएल के मुताबिक चल सकती है अभी। दैट इज वेयर द जुगाड़ कम्स इनटू प्ले, कि यार चलो ठीक है चल सकते हैं। फिर उसकी वजह एक ये भी है कि ऑब्वियसली वी डोंट हैव स्पेयर्स, वी डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स डिप्लीट हो गया है, मजबूरी है, क्या करें, फ्लाइट तो चलानी है ना। सो वो एक जो पूरा बिल्डअप हुआ है 10-15 सालों में, उस बिल्डअप को क्लियर करने के लिए आपको कैश इंजेक्शन चाहिए, कैश इन्फ्यूजन चाहिए। अब वो 2 तरीकों से आता है, या तो आप प्राइवेटाइज हो जाएं, आपकी सारी लाइबिलिटीज को प्राइवेट ओनर ले ले, जैसे एयर इंडिया की हुई है, और आपको कैश इंजेक्शन भी दे कि भाई आप अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एटलीस्ट अप टू द स्टैंडर्ड कर सकें। या फिर आप गवर्नमेंट से बेल आउट पैकेज लें हर साल,
और आप उसको हवा में उड़ा दें, उससे आप कोई भी प्रोडक्टिव चीज ना करें. सो दिस इज द रीजन के व्हाई द सेफ्टी कल्चर इन PIA is the worst and you have the worst safety rating in the world. So this is the reason. डू यू थिंक कि ये जो एक पावर है, ठीक है, व्हाट यू जस्ट एक्सप्लेन, शुड दिस बी गिवन टू एयरलाइंस, या इसके ऊपर अगर चलो अगर ये पावर एक एयरलाइन के पास है, क्या CAA या ऊपर जितनी भी एविएशन अथॉरिटीज उनको चेक नहीं रखना चाहिए इसके ऊपर कि यार इज इट मेकिंग सेंस? कोई अथॉरिटी है जो देखती है कि यार ये 1+1=2 हो रहा है? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है. हमारे पास ये सिर्फ एविएशन में मसला नहीं है, हमारे हर डोमेन में ये मसला है. हमारे पास रूल बुक हर चीज की है और बेहतरीन है, दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. हमें हमारे पास जब भी इकाओ का, एयाटा का या किसी भी बॉडी का ऑडिट होता है, वो हमेशा सबसे ज्यादा इसी चीज को एम्फसाइज करते हैं कि आपके यहाँ इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स नहीं है. और इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स अगेन आप तभी कर सकते हो जब आपके पास रिसोर्सेज हो, और आपके रिसोर्सेज तो डिप्लीट होते रहे हैं, आपने उनको मेंटेन नहीं किया. अब अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है. अगेन आपको कैश इन्फ्यूजन चाहिए, आपको प्रोडक्टिव लोग चाहिए, आपको पूरी एयरलाइन में रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, आपको पूरा का पूरा सिस्टम, वो कहते हैं ना आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, वो आपको पूरा आवे का आवा ठीक करना पड़ेगा टॉप टू टो. अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ. हमने बहुत सारी आवाजें सुनी थी जो लास्ट गवर्नमेंट गुजरी है 2018 से 22 तक, अप्रैल तक, के जी PIA प्रॉफिटेबल हो गई. वो जी PIA का तो रेवेन्यू इतना ज्यादा हो गया, वो जी PIA का तो ये हो गया, वो हो गया. बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिली. जो CEO PIA थे उनसे भी हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती थी. लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि PIA का रेवेन्यू ऐसे बढ़ कैसे गया. प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट हुई नहीं, जहाजों की रिफर्बिशमेंट हुई नहीं. जहाजों की रिफर्बिशमेंट के नाम पे आपको चूना क्या लगाया गया कि आपने सिर्फ जहाजों की सीटों के कवर बदल दिए. IFE आपके जहाजों का चलता नहीं. IFE अगर चलता भी है तो उसमें सिर्फ आपको नक्शा नजर आता है कि फ्लाइट कहाँ से गुजर रही है, और वो भी सारी सीटों पर नजर भी नहीं आता. सो किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं है, कोई नया नया रूट इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई फ्लीट एक्सपेंशन नहीं हो रही, कोई नेटवर्क की एक्सपेंशन नहीं हो रही, किसी किसी चीज में चेंज नहीं आया, तो ये PIA एकदम रातों रात प्रॉफिटेबल कैसे होगी. ठीक है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ. 2018 में शाहीन एयर एग्जिट करती है. शाहीन के पास होते हैं 19 जहाज. ठीक है, अब बेसिकली एयरलाइन का जो बिजनेस है आप मेजर करते हैं अवेलेबल सीट्स से, कि आपके पास एक पर्टिकुलर रूट के ऊपर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं. फिर वो आप सारी एयरलाइंस की काउंट करेंगे अगर आप कंपटीशन भी काउंट करते हैं तो. शाहीन एग्जिट होता है, 19 जहाज निकल जाते हैं, 5 A330s, 11 या 10 A320s, 7 A319s. और ठीक है, एक वक्त तो में छोटी शाहीन बात जो नहीं. है 42 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा था डोमेस्टिकली वीकली. यस, पीक यस, उन्होंने हिट किए. ठीक है. दैट मीन्स के आपके पास मार्केट में अवेलेबल सीट्स थी. अगेन सिंपल इकोनॉमिक्स, जब आपके पास सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो प्राइसेस कम हो जाती हैं. ठीक बिल्कुल हो सही. गया. शाहीन एग्जिट कर जाती है, सारा लोड किस पे डिवाइड होता है. कीप दैट इन माइंड, उस वक्त सीरीन एयर नहीं थी. नहीं सीरीन थी. एयर मिड 19s में आई है. तो सारा लोड किस पे डिवाइड हो जाता है. PIA एयर ब्लू. PIA एयर ब्लू पे. ठीक है, सीरीन बस फौरन थोड़े अरसे में ही आ जाती है, लेकिन ऑब्वियसली सीरीन को इतना फायदा नहीं होता जितना PIA एयर ब्लू को होता है, क्योंकि उनके पास फ्लीट बड़ा है. सो जो वो पैसेंजर टूटता है, गल्फ का भी, डोमेस्टिक भी, वो पैसा अगर PIA के पास आ रहा है जस्ट बिकॉज कि एक एयरलाइन ने एग्जिट किया है, सीट्स आपकी मार्केट से निकल गई हैं. आज तक बाय द वे वो सीट्स आप भर नहीं सके, क्योंकि अभी सीरीन का, एयर सियाल का और इनफैक्ट फ्लाई जिना का भी अगर आप फ्लीट पूरा कंबाइन कर लें तो वो शाहीन के बराबर नहीं है. आज तक आप वो सीट का जो गैप है फिल नहीं कर सके, विच इज वाई आपकी टिकटें आज भी जो है ना इतनी महंगी हैं. आप कैसे कह सकते हैं कि ये एयरलाइन की कामयाबी थी दैट दे इंक्रीज देयर रेवेन्यू. और रेवेन्यू ठीक है आपने इंक्रीज कर भी लिया, आपने
रेवेन्यू इंक्रीज करने का कोई फायदा क्यों नहीं उठाया? आपने अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं लाए? आपने अपने जहाजों की जो है ना उसकी स्टैंडर्ड में आप इंप्रूवमेंट क्यों नहीं लाए? आप बीएमएच जो कि वियतनाम, बीएमएच और बीएमजी जो जहाज हैं 777s, आप अभी जाके देख लें जहां पर भी वो दुनिया में खड़े हैं, उनका पेंट चिप ऑफ हो रहा है। आपने कुछ भी नहीं किया इंक्रीज रेवेन्यू से भी, कुछ हासिल नहीं किया। मतलब एक तो आपने पहले एफर्ट नहीं की, ठीक है, चलो उसके बाद भी आपको मार्केट शेयर इंक्रीज़ आपका हो गया, आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, फिर भी मेंटेनेंस के अंदर आपके डिफेक्ट्स आ रहे हैं और स्टैंडर्ड्स फिर भी मेंटेन नहीं हो रहे। तो मतलब कैश का तो इशू हमें था नहीं कभी भी। कैश का इशू हो भी, एयरलाइन लॉस में जा रही है, टैक्स पेयर मनी आपका जा रहा है, राइट? सो देयर सम प्रॉब्लम इन द स्ट्रक्चर। बेल आउट आपको हर साल कंसिस्टेंटली मिल रहा है सिंस 2013, ठीक है। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीआईए 2013-14 में या आई गेस 15 में पीएमएलएन गवर्नमेंट में कुछ कोशिश हुई थी, और वो कोशिश किसने की थी? वो भी आपसे तो हो नहीं सकी। जो जर्मन सीईओ आप लेके आए थे, उसने कुछ कोशिश की थी कि चीजें बेहतर हों, चीजों को जो है ना, क्योंकि आप एक एयरलाइन है, आप नहीं कर सकते। और फिर जब आप सही। ऑब्वियसली फिर आप कहते हैं कि जी हमने गोरे से काम कराना है, वो फिर काम प्रॉपरली करेगा। हमने पाकिस्तान प्रीमियर का प्रोडक्ट देखा, ऑल्दो उसमें कोई नई चीज नहीं है। एमिरेट्स आपको अपनी जहाज की फ्लाइट पे नॉर्मली देती है सारी चीजें, लेकिन क्योंकि जी पाकिस्तान में आप शुरू कर रहे थे, तो इट वाज अ गुड इनिशिएटिव। अगर वो चल जाता, आप आहिस्ता आहिस्ता शायद उससे सीख के, अपॉर्चुनिटी को सीज करके, थोड़ा थोड़ा करके आप शायद उसको अपनी बाकी फ्लीट पे भी ले आते। लेकिन आई डोंट नो कि तो ऐसा क्या मतलब हुआ कि इट वाज अ बिगेस्ट फेलियर इन एयरलाइंस, इन रिकॉर्ड्स। तो वो आप नहीं कर सके, आपने उससे भी नहीं सीखा। आज भी 3 दफा, मुझे अच्छी तरह याद है, 3 दफा टेंडर खुला था पीआईए का कि जी हम अपने 777 की फ्लीट पे रिफर्बिशमेंट करना चाहते हैं, हमने अपने जहाजों की रिफर्बिश करना है। 2017 या 18 में हम क्या देखते हैं जी, ओ जी रिफर्बिश होके आ गए, क्या हुआ है जी, सीटों के कवर चेंज हो। फिर आपको याद होगा, अब वो डॉक्टर मुशर्रफ रसूल सियान साहब थे, उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि जी हम रीब्रांडिंग करते हैं। गुड, नॉट बैड, बट अगेन आप एक लेट्स से एक बहुत पुरानी गाड़ी है जिसके अंदर, कोई एक गाड़ी है उसके अंदर इंजन नहीं है, बहुत अच्छी पेंट हुई हुई है, बहुत अच्छी मॉडिफाई हुई है, हर चीज लगी हुई है उसमें, क्या वो चलेगी? बस वो आपने साइकोलॉजिकल तौर पे एक मैनिपुलेशन क्रिएट कर दी है। वो चीज आप तब करते हैं जब आपके पास ऑन बोर्ड प्रोडक्ट अच्छा होता है, ठीक है ना। फिर आप बोलेंगे जी हम अपनी एयरलाइन को रीब्रांड करते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं। मार्कोर वाज रियली गुड आइडिया, लेकिन अगेन इट वाज नॉट इकोनॉमिकल। आपको एक जहाज पे सिर्फ डिकेल्स और पेंट लगाने के 34 लाख रुपए पड़ रहे हैं। तकरीबन उस वक्त आपके पास 33 का फ्लीट था, और आपने पूरे, आप हिसाब लगा लें, मैथ्स कर लें, कैलकुलेटर लें, और उससे आपके प्रोडक्ट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। प्रोडक्ट वैसे का वैसे ही कंसिस्टेंट है जहां पे था। तो पैसेंजर को तो एक्सपीरियंस चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। यू वुड बी अवेयर, शायद ऑडियंस को थोड़ा सा समझने में मसला हो, ओपन स्काईज पॉलिसीज के बारे में शायद आपने कई दफा सुना होगा, खबरों हम्म। में भी या कुछ एनालिस्ट से भी, कि जी पाकिस्तान की ओपन स्काई पॉलिसी है, और पाकिस्तान में जो जी दूसरी एयरलाइंस आती हैं सारा बिजनेस लेके चली जाती हैं। एक टाइम पे एमिरेट्स की एक दिन में 7 फ्लाइटें चलती थी कराची से दुबई के लिए, ठीक है। दैट वाज बिकॉज ऑफ द ओपन स्काई पॉलिसी एग्रीमेंट जो कि एमिरेट्स को हमने दिया था। So I had this opportunity to speak one of to speak to one of the CA's official कि सर ऐसा क्यों है, हमारी लोकल इंडस्ट्री तबाह हो रही है, हमारी एयरलाइन कम्पीट ही नहीं कर पाती। एयर ब्लू ने कराची दुबई का रूट ड्रॉप ही कर दिया बिकॉज वो कम्पीट नहीं कर पाती थी। अब एमिरेट्स पे जो ट्रैवल बंदा करता है वो सारे दुबई नहीं जाते, ऑब्वियसली एमिरेट्स ट्रांजिट के लिए पैसेंजर भी लेके जाती है, लेकिन जिसने डायरेक्टली दुबई जाना है वो उतने ही पैसों में अच्छी एयरलाइन पे क्यों ना जाए। तो एयर ब्लू ने वो रूट ही ड्रॉप कर दिया था इन दैट सिनेरियो, इन दैट पीरियड, सॉरी। सो मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या वजह। उन्होंने मुझे एक बात बड़ी और बहुत पते की बात बताई, और उन्होंने कहा, हमने कहा यार देखो ऐसा है कि आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन आपकी जो लोकल एयरलाइंस हैं या जो आपकी पीआईए है, एयर ब्लू है या लोकल इंडस्ट्री है, अगर वो अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करना ही नहीं चाहती, वो समझती है कि जी हमारा गुजारा चल रहा है, हम खुश हैं,
ठीक है, तो व्हाई द कंज्यूमर शुड सफर? ठीक है, कंज्यूमर के पास तो ऑप्शन होना चाहिए ना। मैं अगर 70-80 हज़ार रुपए की या लाख रुपए की टिकट ले रहा हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन भी होना चाहिए ना कि मेरे पास वैल्यू फॉर मनी मुझे कौन सबसे ज्यादा दे रहा है। ऐसे ही सो दैट वाज द रीजन कि एमिरेट्स को या जो गल्फ की दूसरी एयरलाइंस हैं उनको ओपन स्काई पॉलिसी के तहत स्लॉट्स दिए गए। ऑल्दो इट्स अ बिट रिस्ट्रिक्टेड दीज डेज आफ्टर कोविड। ऑल्सो बहुत सारे मसले हो गए थे क्योंकि रिड्यूस्ड ट्रैफिक हो गई थी, ट्रैवल इतना ज्यादा हो नहीं रहा था, तो इस वजह से। लेकिन प्री पेंडेमिक दौर में जो आपका ओपन स्काई पॉलिसी थी वो कंज्यूमर एंड यूजर को बेनिफिट करने के लिए थी कि उसके पास ऑप्शन हो, उसको वैल्यू फॉर मनी बेहतर से बेहतर मिले। अगर आपकी एयरलाइन कम्पीट नहीं कर रही तो ये एयरलाइन का प्रॉब्लम है, अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करें। मेरे रिश्तेदार आते थे पाकिस्तान से तो यार पूछते थे ना, पहला सवाल हमारी होता फ्लाइट कैसी थी। ओ यार खाना नहीं दिया खाना नहीं दिया, सो खाना अच्छा नहीं था। बेसिकली यस यार यस, आप डिपार्चर टाइम देखो, अराइवल टाइम देखो, क्रू का बिहेवियर देखो, आप एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर देखो, उसकी मेंटेन, खाना नहीं दिया, फ्लाइट बुरी थी, पैसे नहीं जो पूरे। एक एवरेज नॉर्मल पैसेंजर है, मैं आपको बताता हूँ। पैसेंजर 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है टाइम सेंसिटिव, नॉट प्राइस सेंसिटिव। एक होता है प्राइस सेंसिटिव, नॉट टाइम सेंसिटिव। एक होता है बोथ प्राइस एंड टाइम सेंसिटिव, और एक होता है बोथ नॉट प्राइस और नॉट 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 द टाइम सेंसिटिव। खाना सेंसिटिव ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं नेक्स्ट यही कहने लगा था कि पाकिस्तान में पांचवी एक जो है ना कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, वो ये है कि खाना किसका अच्छा है और बैगेज सबसे ज्यादा कौन देता है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानीज आर नॉट लाइट ट्रैवलर्स, इवन फ्रॉम द यूके और यूरोप, कहीं से भी आ रहे हो, दे आर नॉट लाइट लॉट ऑफ ट्रैवलर्स। नंबर। तो वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। मतलब कंक्लूजन यही आई कि यार आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस थी, पीआईए उस वक्त आपका एक्सेल कर रहा था मार्केट शेयर वाइज, यू हैड द पावर, ठीक है। आपके पास पावर नहीं भी है, आप लेते रहे हैं टैक्स पेयर मनी, आपके ऐसी पास कोई पावर इशू नहीं नहीं, भी है, आप एक ठीक है। सरकारी एयरलाइन है, आप एक दरखास्त बिल्कुल लिख के दें और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हर जगह से इस्तेमाल करें, बिल्कुल आपको बेल आउट मिल जाएगा। बिल्कुल आज भी, आज इतनी कैश ट्रैप हमारी इकोनॉमी वो ओवरऑल इतनी ज्यादा, आज 2000 पॉइंट्स गिर गए जो है ना स्टॉक एक्सचेंज में। आज भी अगर पीआईए बोले ना गवर्नमेंट को कि भाई हमें $500 मिलियन चाहिए, हम ये सारा कुछ ठीक कर देंगे अगले 5 सालों में, एयर गवर्नमेंट खुशी खुशी देगी, आई ऐसे नो। ऐसे लेकिन तो सवाल यही है कि वो करने की नीयत भी है या नहीं, ठीक है ना। ठीक है। तो इधर अब फाइन, ठीक है, पीके से 661 हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है यार, कि इट वाज व्हाट आई कुड कंक्लूड इज के इट वाज एन अवॉइडेबल एरर, ठीक है। इट वाज समथिंग फ्रॉम द मेंटेनेंस, समथिंग फ्रॉम द इंटरनल पार्ट ऑफ द कंपनी विच इज़ लाइक दैट टर्बाइन ब्लेड फिक्सेबल, फ्रैक्चर है तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं, राइट। इट वाज बेसिकली अ टोटली कल्चरल डिजास्टर, जो हमारा एक कल्चरल डिजास्टर है। इसको क्या कहते हैं हमारे पाकिस्तान में। लाइकवाइज 8303 वाज आल्सो अ कल्चरल डिजास्टर, कि हमारे कल्चर में बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि यार अब दुनिया भर में किसी पायलट की जरूरत नहीं है कि वो एटीसी को आगे से बोले यू आर नॉट इन यू आर नॉट इन द कॉकपिट, यू आर नॉट अ पायलट, वी आर द पायलट्स, लेट मी हैंडल। और मैं आई विल स्टॉप यू राइट हेयर, आई विल स्टॉप यू राइट हेयर, दिस इज़ अ परफेक्ट ट्रांजिशन इन फैक्ट। इसी पे मैं ही आ रहा था कि इट्स नॉट फेयर इनफ टू ओनली ब्लेम द इंटरनल पार्ट ऑफ द कंपनी, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, और हम एज हमारा एज एज अ सिस्टम वेयर आर वी, ठीक है, एज इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, बिलीफ वाइज और हमारे माइंड सेट वाइज भी वेयर आर वी, ठीक। You talked about the pilot thing here, or either I will mention another big disaster which I believe which could be and should have been avoided, ठीक है। अगेन बहुत क्रैशेस हुए, बहुत, यहाँ पे अगर हम बात करने बैठ जाएं वी कैन बी हेयर फॉर एवर, राइट। बट दिस इज अनदर थिंग विच यू रिमाइंडेड मी ऑफ एंड स्टैंडर्ड स्टूड ऑफ कंप्लीटली, PK8303, ठीक है। आपका रीसेंट हादसा है, आप सब कुछ भूल जाएं, ठीक है, उसमें हम सब वी कैन गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट, मतलब कह सकते हैं चलो ठीक है, फॉर इंस्टेंटली हम हम उस बिलीव पे कर लेते हैं, बिलीव कर आई वुड लेते हैं। से नहीं, पीके आई वुड नॉट टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड एंड व्हाट नॉट हैपेंड।
I can tell about what could have happened. ठीक है. PK8303 was just a normal flight. पिछले दिन भी उन्हीं pilots ने वही flight operate की थी. It was just a normal day. A320 having more than 150 million hours and having the highest safety rating. और दुनिया की हर एयरलाइन की चॉइस है A320. कोई दुनिया में शायद ही ऐसा मुल्क होगा जो मुझे नहीं पता जहां पर एयरबस A320 ऑपरेट नहीं करता. हमने वो भी गिरा दिया. अब मेरे दोस्त मुझे कॉल के कहता है जानी सब खैरियत है. मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कहता है PIA ने जहाज़ गिरा दी. मैंने कहा अच्छा ठीक है, पहले भी बात सुनी हुई है. उसने कहा A320 गिरा दिया. मैंने कहा A320 गिरा दी है? A320 यार, मतलब दैट वाज लाइक. मैंने कहा चलो ATR होता, हमारे दूसरे वेरिएंट्स होते अगेन, लेकिन व्हाट स्टूड आउट ऑफ मी वाज A320. एंड मैंने फिर आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट. और फिर जब मैंने व्हेन आई रेड द स्टोरी लाइन, एंड मैं मजाक नहीं करूँगा, बिकॉज ऑफ दैट टिल टुडे एज अ पैसेंजर आई एम इनसिक्योर ऑफ द पायलट फ्लाइंग इन द कॉकपिट. ठीक है, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, ऑनेस्टली कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया. मतलब इट वाज एन अवॉइडेबल क्रैश. ठीक है, यू आर गोइंग थ्रू इट सो सिंपली. एट द एंड हुआ क्या कि अब मैं इसको पता नहीं केयरलेसनेस का हूँ, दिस इज़ समथिंग यू विल टेल, केयरलेसनेस का हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस का हूँ, या ईगो का हूँ, आई डोंट नो दिस, बट हियर्स व्हाट हैपन इन अ नटशेल. ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट बेली लैंडिंग हुई. ठीक है, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ATC किधर था? ATC ने आपको वार्निंग्स दी नहीं दी? अच्छा, फिर ATC ने आपको रिक्वेस्ट की कि यार आपकी अप्रोच जो है वो अनस्टेबल है, आप री अप्रोच करें. आपने वो भी इग्नोर किया. ठीक है, आपने स्टैंडर्ड कॉल आउट्स इग्नोर किए, आपने ओवर स्पीड वार्निंग्स इग्नोर की, CRM प्रोटोकॉल्स इग्नोर की. अब मेरा क्वेश्चन सिंपल, हाउ मैनी, इज दिस रियली ट्रू? मैं ये बिलीव नहीं कर सकता इट्स ट्रू. हाउ मैनी वार्निंग्स कैन अ पायलट इग्नोर? And what is this? Just explain this. Okay, so first thing first, I will not question the ability of the pilots. They were one of the experienced pilots, Captain Sajjad Gul, may Allah yarham him, may he rest in peace, of course. He was having more than 10,000 hours. Uh, I guess, if I'm not wrong, first officer name was Usman. May he rest in peace as well. He was having, having a lot of more than 5,000 hours. So I will not question the ability of the pilots here. ठीक है, यहाँ पर pilots को आप completely जो है ना नहीं दे सकते, क्या कहते हैं उसको, कसूरवार नहीं ठहरा सकते. यहाँ पर अगेन जो सबसे बड़ा मसला है वो कल्चर का है. ठीक है, अब अगेन मैं I will not be specific, but number one thing, the first failure, आपको ATC कह रहा है कि आप 360 ले लें. ठीक है, आप उसके रडार के मुताबिक आप हॉट एंड हाई हैं, आप डिसीजन हाइट से थोड़ा ऊपर हैं, सॉरी आप अप्रोच पाथ से थोड़ा ऊपर हैं. आपको ATC कह रहा है आपने 360 लेना है, आपके पास लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. बजाय इसके कि आप रिक्वेस्ट कर दें कि हाँ जी हम नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर ATC आपको स्टिल इंसिस्ट कर रहा है कि आपको लेना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप ना लें. दुनिया में आप कहीं पर भी ये चीज नहीं कर सकते. ठीक है, दूसरी बात, आपने ATC की बात की. एट दैट डे जो अप्रोच थी वो जो आपका अप्रोच कंट्रोलर होता है वो हैंडल कर रहा था. द टावर वाज एम्प्टी बिकॉज ऑफ जुमा प्रेयर्स. देयर वाज नो फिजिकल पर्सन inside the tower, as far as I know. I could be wrong maybe, but as far as I know, as far as I have had conversations with people on this topic, there were no one inside the tower to basically physically witness the aircraft having a landing gear issue or if he's landing on a bellies. I remember that same day जिस दिन ये crash हुआ था, उस दिन we were having a huge discussion of scraped engines and belly landing, and one of our friend, his name is Hassaan Ansari, he was basically the first person who suggested, even before any investigator could find out, by only looking at the pictures जो के प्लेन स्पॉटर्स पाकिस्तान के एक लड़के ने कैप्चर की थी जब वो जहाज गो अराउंड कर रहा था. At that time, in the pictures, you could see the scraped engines. आपके engines नीचे से totally रगड़े हुए थे. आपके culture में ये चीज है कि यार अगर let's say अगर वो
वो फ्लाइट 360 करने के बाद लैंड सेफली हो जाती, तो जो कप्तान था, जो पायलट था, यूजिंग द इन्फ्लुएंशियल पावर्स ऑफ पाल्पा, वो उस एटीसीओ के लिए मसले खड़े कर देता। ये हमारा कल्चर है, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, शायद कैप्टन सजाद गुल बहुत अच्छे इंसान होंगे, उन्होंने शायद कभी ऐसी हरकत नहीं की होगी, लेकिन ये कल्चर एग्जिस्ट करता है कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मेरे इतने घंटे हैं, मैं पायलट हूँ, तुम कौन होते हो मुझे बताने। ये कल्चर एग्जिस्ट करता है। आपके इसी कल्चर की वजह से आपके एयर ब्लू का क्रैश हुआ था। उस एयर ब्लू के क्रैश की जो सीवीआर रिकॉर्डिंग है, उसमें फर्स्ट ऑफिसर कहता हुआ उसके आखिरी अल्फाज थे, सर वी आर गोइंग डाउन। एंड व्हाई? बिकॉज दैट पायलट वाज इन हिज ईगो कि जी मैं आर्मी से आया हुआ हूँ, मैं इस तरह का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम कौन होते हो। उस क्रैश के बाद एयर ब्लू लर्न द लेसन। एयर ब्लू का कल्चर इस वक्त पाकिस्तान में इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि आप इतनी सी गलती के लिए आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एयर ब्लू के कल्चर, एयर ब्लू की मैं बात कर रहा हूँ। एयर ब्लू लर्न द लेसन फ्रॉम देयर। एयर ब्लू की सीआरएम बेहतरीन, आप उनके पायलट्स देखें, यंग लड़के जो है ना कप्तान बन रहे हैं उनकी एयरलाइन में। क्यों? क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अच्छा है। जो काम करेगा, जो प्रोसीजर को फॉलो करेगा, जो कॉल आउट्स को, जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, वो आगे मेरा बढ़ेगा। मेरा इधर एक क्वेश्चन है बिलाल, यू श्योर। आई एम ऑनेस्टली कंफ्यूज हियर कि अगर एटीसी के अंदर, मतलब अगर एटीसी के अंदर आपका देर नो इंडिविजुअल्स देर, आपके उस वक्त पे लैंडिंग्स होती हैं? आप मतलब दिस डजंट मेक सेंस टू द एवरेज पर्सन। अब अगेन अब एक और बात है, सीए की रिपोर्ट के अंदर इट्स एक्चुअली वेरी डिफरेंट। ठीक है, उसके सीए की रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया है कि एटीसी ने एडवाइस की एबनॉर्मल अप्रोच पे। ठीक है, मैं वो आपके बेसिकली जो आई विल कट यू हियर, आई लेट यू, बेसिकली मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसकी डिविजन्स हैं। ठीक है, जो अगर आप नीचे से ऊपर तक जाना चाहें तो फर्स्ट वन इज द ग्राउंड कंट्रोलर, देन देयर इज द टावर कंट्रोलर, देन देयर इज एन अप्रोच कंट्रोलर, एंड देन देयर इज द एरिया कंट्रोल, एरिया कंट्रोल्स कंट्रोलर। ठीक है, जिसको आप रेडार कंट्रोलर भी कहते हैं। जो ग्राउंड कंट्रोलर होता है वो एयरपोर्ट के ग्राउंड पे जो जहाज की मूवमेंट होती है वो उसको देखता है। क्यों ये डिविजन्स इसलिए बनाई गई हैं, अगर ज्यादा ट्रैफिक हो तो एक बंदे के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े। जो बिजी एयरपोर्ट्स होते हैं उन पे बकायदा एक क्लियरेंस डिलीवरी के नाम से भी एक डिवीजन होती है। सो कराची पे क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती, सो जो ग्राउंड का और जो टावर कंट्रोलर है वो ग्राउंड के भी काम नॉर्मली करता है। आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर, बट ऐसा होता रहता है ऑन एंड ऑफ। शायद वहां पर ग्राउंड कंट्रोलर ऑन एंड ऑफ हो पीक टाइम्स में, पीक आवर्स में, लेकिन जो आम टाइम होता है उसमें टावर कंट्रोलर भी ग्राउंड कंट्रोलर के काम कर रहा होता है। ठीक है, सो जो टावर कंट्रोलर होता है बेसिकली ही इज द वन हु इज सिचुएटेड इन द टावर and also the ground controller. These both guys can actually take binoculars on their eyes and they can see aircraft movement. तो वो एटीसी जिसने सजेस्ट किया था कि आप जो है वो अप्रोच पाथ से हाई हैं, आपकी स्पीड ज्यादा है, ही वाज द अप्रोच कंट्रोलर। अप्रोच कंट्रोलर जो है वो इस तरह के एक बंद कमरे में होता है। ही कैन नॉट सी द फिजिकल एयरक्राफ्ट कमिंग इन एंड कमिंग गोइंग आउट। He can only rely on the radar information he is getting on his screen. See है? So based on that, everything was fine. ये हो सकता है कोई इसमें by the book there is no problem, but by the book also says, book also tells के टावर जो है वो आप खाली नहीं छोड़ सकते, कोई एक बंदा टावर में होना जरूरी है। सो शायद एक बंदा वो टावर में होगा भी, लेकिन जो बंदा उस जहाज को उस वक्त इंस्ट्रक्शंस दे रहा था वो अप्रोच कंट्रोल में था, और अप्रोच कंट्रोलर नहीं देख सकता कि जहाज को कौन सी जो है वो उसकी क्या सिचुएशन है फिजिकली। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। अप्रोच कंट्रोलर ने अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से किया कि भाई आप 360 लो, आप क्यों नहीं ले रहे, आप अप्रोच पाथ से ऊपर हैं। अगेन नो ऑफेंस टू पायलट्स, नो क्वेश्चंस ऑन देयर एबिलिटीज, नो क्वेश्चन ऑन देयर एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आपको एटीसी कह रहा है कि आपने लेना है तो आपने क्यों नहीं लिया। ठीक है, अब वो हमारे साथ है नहीं, और सबसे इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा पायलट एसोसिएशंस उठाती हैं
कि जैसे ही खुदा ना खास्ता कोई क्रैश हो गया, और ऑब्वियसली ज्यादातर लोग पायलट्स को ब्लेम करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए. आई एम आल्सो टोटली अगेंस्ट इट. यू हैव टू wait for the report, you have to wait for the investigation, it takes years to come in Pakistan, in a country like Pakistan. But again, आप पायलट्स को जैसे ही ब्लेम करते हैं, इवन रिपोर्ट आने के बाद भी पायलट एसोसिएशन उठ के खड़ी हो जाती है. पायलट एसोसिएशन जो है ना वो हो जाती है, चौड़ी हो जाती है कि जी नहीं नहीं नहीं, ये वो ऐसा तो नहीं है. Now here's where you come in. Um, Landing without gear, that's something very very abnormal for at least a person like me. ठीक है, engine failure होता, something blah blah, it's ignorable. Now I don't understand this part. चलो ठीक है, ATC of course एक पायलट का सिर्फ कसूर नहीं होता, एक ATC के पार्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे प्रोटोकॉल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, को पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वी ऑल नो दिस कि पहले तो रूमर ये था ना कि भाई बेली लैंडिंग हुई है या नहीं हुई. आफ्टर सीइंग द फुटेज एंड ऑल वी न्यू कि भाई पहली अटेम्प्ट बेली लैंडिंग की हुई है. अब पहला क्वेश्चन ये है कि वेयर वाज द गियर. So I'll go back to the go back when the ATC asked the pilots, the flight, dear PK8303, you are above the approach path, let's say, I'll change the words, please make a 360. ठीक है, उसने 360 करने का तरीका ये होता है कि वो आपको एक हेडिंग देता है कि आप ये हेडिंग फॉलो करें, और राइट टर्न करके या लेफ्ट टर्न करके जिस तरफ भी वो आपको कहे उस तरफ करके आप उसको जो है ना एक 360, एक बेसिकली आम जबान में एक चक्कर समझ लगा गया, के, चक्कर लगा, और दायरा साथ साथ दायरा बना दें. उस चक्कर वो दायरा भी बनाएं, और उस दायरे के दौरान जब आप दायरा बना रहे हो तो आप अपनी स्पीड भी कम करें और आप अपनी जो हाइट है वो भी कम करें. ठीक है, दैट्स द मेन रीजन व्हाई द एटीसी आस्क्ड फॉर अ 360. सो व्हेन द पायलट सेड नहीं जी वी आर एस्टैब्लिश्ड, दैट मींस कि भाई वो कह रहा है कि आई कैन गो फॉर द लैंडिंग. ठीक है, बट एटीसी को नजर आ रहा है कि भाई उसकी स्पीड ज्यादा है. सो व्हाट पायलट्स वुड हैव डन इज कि शायद, अगेन नो क्वेश्चंस टू द पायलट्स कैपेबिलिटीज, शायद उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनमें मैल फंक्शन था, उनको डिसीजन, उनको हाइट और उनकी स्पीड जो है वो शायद सही नजर नहीं आ रही थी शायद, बट एक्चुअली वो ज्यादा थी. जब आपकी स्पीड एक लिमिट से ज्यादा होती है तो गियर्स नहीं खुलते. सो दैट इज द रीजन आप जब कहते हैं कि आप हॉट एंड हाई आ रहे हैं, दैट मींस आप इस स्पीड पे जहाज टच डाउन नहीं कर सकते. सो वो जब आप स्पीड जब तक वो अचीव नहीं करते गियर्स नहीं खुलते. शायद पायलट्स ने गियर खोले होंगे, बट इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी के, ये मेरा ओपिनियन है, आई विल मेंशन दिस अगेन, कि शायद उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्हें वो वही स्पीड दिखा रहा होगा कि ये स्पीड जो है इस पे आपके गियर्स खुल जाएंगे, आप हॉट एंड हाई नहीं है, आपकी स्पीड भी ठीक है, आपकी हाइट भी ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो ठीक नहीं थी. could be a malfunction of the instruments, could be. ठीक है, again possible है. So जब आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपका गियर नहीं खुलेगा, and by the time when they came to land, and because there were no gears when they touched down, and immediately they realized that we don't have gears and we have our engine scraping the runway, they decided to go around. What they did not know that they have damaged the engines beyond the point where they can generate power, and their both of the engines failed at less than 3000 feet. और अगर आपने सली मूवी देखी हो और आपको नहीं. कैक्टस 1549 फ्लाइट का वाकया याद हो जो न्यूयॉर्क में हुआ था, जो कि हडसन पे उन्होंने लैंड किया था, सिमिलर टू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, बट दैट वाज सेल्फ क्रिएटेड. उधर बर्ड स्ट्राइक हुई थी लेकिन ये सेल्फ क्रिएटेड थी क्योंकि जी आपके जहाज के जो इंजन है वो रगड़ा खा गए थे रनवे के साथ. सो आपने तस्वीरों में भी देखा होगा उसका जो रैम एयर टरबाइन था वो खुल गया था, और 3000 फुट से नीचे आपकी हाइट है, पावर आप जनरेट कर नहीं सकते. अब आपको ग्लाइड करके आना है किसी तरह दोबारा घूम के लैंड करने के लिए. सो समटाइम्स आई फील लाइक the difference between life and death was on that day was 1 mile only. They crashed 1 mile short of the runway. So डेस्टिनी, ये सारी चीजें अपनी जगह शायद उनके नसीब में था, उनके लिए लिखी हुई ऐसी थी, whatever जो भी है. ठीक है, because we have seen 2 survivors from that flight also. But again, जो क्रैश होता है वो एक दम नहीं हो जाता. It leads from the series of events जिसकी वजह से क्रैश होता है.
और सारी अब दुनिया में ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे होते हैं, आप क्रैश इन्वेस्टिगेशंस भी देखें, वो बिल्कुल पीछे से लेके जाते हैं कि जी ऐसे हुआ बिल्कुल ऐसे होगा, ही ये नेट ऐसे थोड़ा ही ढीला रह गया होगा, ये हो गया ठीक होगा। है। दैट्स द रीजन। सो एक कॉल आउट पाकिस्तान में सिर्फ इस्तेमाल होती है, और उस जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड ऑडियंस नॉलेज एज वेल, जब लैंडिंग के लिए जहाज आ रहा होता है तो एटीसी पायलट्स को एक कॉल देता है, विच इज चेक गियर डाउन एंड लॉक्ड। ठीक है। एंड दुनिया में ये और कहीं पे भी नहीं दी जाती, सिर्फ पाकिस्तान में दी जाती है। वाई सो? बिकॉज पीआईए के एक 747 का एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली विच ईयर, बट इट वाज आई बिलीव इन mid 90s or maybe late 80s shayad, I'm not sure exactly, it's top of my head, I don't have the idea of the date, but 747 ने belly landing की थी इस्लामाबाद में, और वो belly landing was intentional by the pilot. Then there is a complete air crash investigation, you can go on online and try to read about it, क्योंकि वो बेली लैंडिंग इतनी सक्सेसफुल थी कि वो जहाज जो था वो बाद में रिपेयर भी हुआ और वो पीआईए की फ्लीट में चलता भी रहा काफी अर्सा। सो उसके बाद जो है वो ये जो कॉल आउट है, चेक गियर डाउन एंड लॉक्ड, दैट इज बेसिकली अ कॉल आउट, अ रिमाइंडर टू पायलट्स इन पाकिस्तान कि भाई अपना गियर डाउन एंड लॉक्ड चेक कर ले। और इफ यू लिसन टू the ATC of that day carefully, the the ATC did said that also. ठीक है, ऑफ द टॉप अच्छा ऑफ माई हेड बहुत अरसा हो गया, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं है, बट आई एम श्योर, क्योंकि ये सीए का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, चेक गियर डाउन एंड लॉक, वो हर कॉल हर लैंडिंग क्लियरेंस पे बोलते हैं, और उस दिन भी आई एम श्योर उन्होंने बोला था। ठीक है। सो one thing that aircraft tells you that you don't have 3 green lights. Second thing, when the ATC tells you that you don't have gear down and locked, so there is no possibility that the pilots would have forgotten. Again, the only possibility which gives you, which you can calculate, guess with the database available on the surface, which is शायद उनके instrument malfunction थे, they thought they are within the speed limits and within the decision height, but they were not. अब ये एग्जैक्टली ना मे बी दिस मेक्स मोर सेंस राइट, बट अगेन जो चीज़ मुझे ट्रिगर करती है और जो हर्ट करती है कि यार मुझे मुझे कुछ नहीं एविएशन के बारे में पता राइट, एक पैसेंजर को भी नहीं पता, लेकिन एक पैसेंजर क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि यार अगर इस बंदे ने 10,000 या 5,000 आवर्स फ्लाइंग आवर्स दिए हैं तो यार आई शुड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस इन हिम, एंड मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि दिस सच अ बिग थिंग कैन बी इग्नोर्ड राइट। सो कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड थ्योरी कि क्या पता malfunction हो, इंस्ट्रूमेंट्स में इशू हो, कोई मिसकम्युनिकेशन हो, मिसऐप हो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, दैट मेक्स मोर सेंस। बट अब क्वेश्चन इधर आता है कि हु डू वी ट्रस्ट? सीए रिपोर्ट में बता रहा है कि पायलट्स ने लैक ऑफ सीआरएम प्रोटोकॉल्स एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। एटीसी कुछ आपको रिपोर्ट देता है, ठीक है, चेयरमैन आके कुछ आपको कहते हैं, न्यूज़ कुछ बताती है, और फिर यहाँ पे हम फंसे हुए हैं। ऐसा है कि हु टू ट्रस्ट वाला जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, अगर तो आप लेट्स से अगर आप कहते हैं as of now, if you want to if you want to say you want to trust, so वो तो फेक पायलट का जो स्कैंडल था उसके बाद से तो बहुत बुरी तरह टूट गया। ठीक है। What you said is I agree with you, right? और मैं completely I understand that, ठीक है। What I was trying to establish is कि यार pilot instinct नाम की भी कोई चीज़ होती है, and I was actually trying to give the pilots credit यार कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि यार वो लैंडिंग गियर खोलना भूल गए, and that's what ऐसा नहीं, hurt me. ऐसा पॉसिबल ही And नहीं yeah, है, and इट्स नॉट अब पॉसिबल। CA की रिपोर्ट आप देखें तो उसके अंदर दिस इज़ व्हाट ट्रिगर्ड मी। अब अगेन मुझे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स की बात बताए कुछ आगे, आई समथिंग एक्सेप्टेबल एज अ नॉर्मल माइंड, ठीक है। जब मैंने सीए की रिपोर्ट में ये देखा कि भाई सीआरएम प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए, स्टैंडर्ड कॉल आउट्स नहीं हुए, अच्छा उन्होंने ये भी स्टेट किया कि भाई ओवर स्पीड वार्निंग्स थी एंड ब्ला ब्ला एंड व्हाटसोएवर। अब we'll just wrap this up. Here's where the normal person gets confused. यार इंस्ट्रूमेंट्स रॉन्ग थे या इंसान बंदा रॉन्ग था, ठीक है। आप दोनों को भी ब्लेम कर रहे हो, आप या एक को करो या एक को करो। Where do we go, right? What do we learn from See, this? again,
it is too early to, in A303's case, it's too early to say a lot of things because we still don't have the final report. That was a preliminary report which you have quoted. As a normal passenger, I have a few advices for you. Number one, if you're flying international, don't fly any Pakistani airline. You got the money to buy a ticket, you buy any international airline, and for the time being, just don't. Okay. Number two, I would suggest you, if you want to, travel domestically, travel with the airline which you can, judge कि इसके, इसका culture कैसा है. Now the second thing is, I'll come on the fake pilot case, और वो जो आपने थोड़ी सी बात की थी. ऐसा है कि जो fake pilot की बात थी, I was very happy. Where the world was going on and on, pilots were, very depressed. They were disappointed. बहुत सारे जो aspirant pilots थे जिन्होंने recently CPL किया था, या उन्होंने अभी बस एग्जाम दिए थे और उनका रिजल्ट वगैरह या कोई भी चीजें बस फॉर्मेलिटीज रहती थी, या उनके एग्जाम्स होने वाले थे. बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हुआ है. जो इनफैक्ट ओवरसीज ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे, उनके लिए भी बड़े मसले बन गए थे. बट अगेन, आई वॉज वेरी हैप्पी. वाई? जो एक आपने कपड़ा लगाया हुआ था ना आगे, मुंह के आगे, अपने आप को छुपाने के लिए, वो उसके ऊपर गर्म पानी से आपने जो है ना वो उसको हटा दिया कि भाई जो आपकी असलियत है वो सामने आ गई. ठीक है. इंडिया में भी फेक पायलट्स हैं. इंडिया में भी ये चीज होती है. इंडिया में 4000 से ज्यादा है. You can Google fake pilots in India. You will get a lot of BBC and other major news reports. But again, मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो मैं इस डिसीजन से बहुत खुश था. क्यों? उस एक्नॉलेजमेंट की वजह से. अगर आप किसी मसले को हल करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप ये माने कि मसला है. हमारे यहाँ मसला सबसे बड़ा यही है कि आप मसले को मसला नहीं समझते. और मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि ठीक है, आपने लेट्स रैपिंग दिस अप, PK661 हो गया, ठीक है, A303 हो गया, आपका ये सारे जितने भी और बाकायदा क्रैशेस हैं. ठीक है, एक में आपने मेंटेनेंस में आपने सुस्ती की, एक में आपने पायलट ने सिर्फ सुस्ती की, कहीं इंस्ट्रूमेंट्स भी अगर फेल हो, एक वजह से फेल हो ना यार. मे बी देयर टाइम वाज ओवर, मे बी दे नीडेड अ मेंटेनेंस चेक. ऐसी तो मेरे ख्याल, हेयर्स व्हाट आई नो कि A320 ऐसी फेल नहीं होता. ठीक है, दैट्स एट द लीस्ट आई नो. दैट्स द, इनफैक्ट आई विल टेल यू दिस कि आई ऑलवेज चूज़, मेरे दोस्त हैरान होते हैं इस बात पे, आई ऑलवेज, मैं कतर पे जा रहा था फ्यू मंथ्स बिफोर, एंड मैं A320 पे मैं बड़ा खुश था. और दोस्त कहते हैं यार तू छोटे जहाज़ पे है, तू खुश है. मैंने कहा यार भाई आपको नहीं पता कितना सुकून होता है अंदर से, राइट? सो रैपिंग ऑल ऑफ I दिस. personally don't like it. अच्छा, रियली? अच्छा, व्हाट्स द रीज़न? आई लाइक टू नो दिस. I don't like to fly narrow bodies. यार उसका, अब मैं कतर में मैंने फ्लाई किया, अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. उनकी फ़्लाइट कन्फिगरेशन वाज क्वाइट डिसेंट एंड मुझे उसमें रिलैक्सेशन आई. सो ओके, यू हैव अ प्रॉब्लम विद द स्मॉल इन्वायरमेंट और वो, मैं समझ गया. सो यार रैपिंग दिस अप, ठीक है, आप nothing's going to change. You say the pilots were responsible, the instruments were responsible, the organization was someone was responsible. प्रॉब्लम ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं गई. प्रॉब्लम ये है अकाउंटेबिलिटी ली नहीं गई. और प्रॉब्लम ये है कि उसका सोल्यूशन नहीं किया गया, राइट? सो here's the thing, how do we fix this? ठीक है, how do you think it should be fixed? ठीक है, वो सारा क्लियर होगा कि भाई डंडा मारो और ऑल ऑफ दैट. इट्स ईजी टू से, राइट? लेकिन काश हम सीधी सी बात, हम डंडे से भी कभी कभी ठीक नहीं होते. हाउ डू वी फिक्स दिस? एंड पाकिस्तानी जो एक कस्टमर है, पेइंग कस्टमर है, ठीक है, एयरलाइंस का, व्हाट शुड ही एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट ईयर्स टू सी फ्रॉम PIA एंड द जनरल एविएशन इन पाकिस्तान? Okay, so ऐसा है कि if you want to expect as a general passenger and that how things will be fixed, I'm sorry, you don't have any options. I'll be very honest. I'll be very honest. और ये You don't अभी have भी, any options. I agree to that sentence after we got Air Cial, Air Serene और Fly Janare. Still, Yes. that's quite true. Yes. I will be very honest. मैं कोई बातें घुमा के ये नहीं कहूंगा कि ऐसे कर लें, ऐसे हो जाएगा. नहीं है आपके पास ऑप्शन. But to trust what you still already have available. आपकी प्राइवेट एयरलाइंस में
टेक्नीशियन 16-16 घंटे की ड्यूटी करता है 40,000 रुपए पे। यार इससे I need to put this out, right? I will ठीक है, not quote the airline. I don't need to get into some I issues did not now. also quoted an airline, Yeah, but exactly. मैं अपनी बात. I personally know the guys who work 16 hours a day for 40,000, merely $200 a month. He's working, and he is only working out of his passion. इसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं, I'm sorry, I'm cutting you out. जो इंजीनियर्स हैं, जो मैकेनिक्स हैं, उनकी कोई शिफ्ट का तरीका नहीं है, कोई उनका वर्किंग आवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके लिए छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज द पाकिस्तानी रूपी, द इकोनॉमी. और आपको सर्विस भी देनी है, आपको बिजनेस भी चलाना है, और फिर आप जब क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ अभी तक नहीं आई है, जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं सिवाय एयर ब्लू के, क्योंकि एयर ब्लू हैड recently they've completed 18 years, so they have the right people with them who do understand how aviation works. So cutting out the air blue, but the other airlines, I would expect better from Flagina also, but I would quote the other airlines. They still, in my opinion, they still don't know how to run an airline. वो still अभी तक जो है ना वही मुंशी mindset है, जो कि कहता है कि जी 4 रुपए बचा लिए, 5 रुपए बचा लिए, ये वो, but they don't know कि they don't know where to cut, from where they can cut cost, and from where and where they have to invest. और वो बंदा भले जितना मर्जी हो, जैसा मर्जी हो, जितना मर्जी पैशनेट हो, but if he is not having rest, if he is not getting proper rest before his flight or before his duty hours, and if he's underpaid, ना चाहते हुए भी, ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं आप अगर पढ़ें एविएशन की बुक्स में, तो ना चाहते हुए भी वो कोई ना कोई गलती करेगा, बिकॉज यूर फटीग्ड, आप बर्न आउट हो रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा फेडेक्स का एक बड़ा मशहूर क्रैश है, सॉरी क्रैश नहीं है, एक इंसिडेंट है, क्रैश नहीं हुआ था, जिसमें एक बंदे ने इन फ्लाइट, जो कि पायलट्स के अलावा एक बंदा होता है कार्गो जहाज में, उसने पायलट्स पे हमला कर दिया था, जस्ट बिकॉज के वो अपने घर से जो है ना लड़के आया हुआ था, या कोई उसको मसला था, या ही वाज अंडरपेड और समथिंग लाइक दैट. आप क्रैश इन्वेस्टिगेशंस में देख सकते हैं. सो ह्यूमन फैक्टर्स को इस लेवल तक स्टडी किया जाता है कि आपका जो पायलट है या जो कोई भी जहाज में है, उसका मेंटल स्टेबिलिटी, साइकोमेट्री, फिजिक्स और सारी चीजें जो है वो ठीक है या नहीं है. सो जब आप इस लेवल तक आ जाएंगे कि आप एक बंदे को अंडर पे कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन से कहीं कम, बहुत कम, और फिर आप उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और आप उससे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, वो ना चाहते हुए भी गलती करेगा, और वो ना चाहते हुए भी की गई गलती एक इंसिडेंट रिजल्ट करेगी. I'll complete this. We only have 2 to 3 minutes left. पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं कि आपको चीज़ें बेहतर करनी हैं, आपको 3 चीज़ें करनी है. दिस इज माय ओपिनियन बीइंग एन एविएशन एनालिस्ट एंड एविएशन स्टूडेंट. नंबर 1, आप सिविल एविएशन के अंदर से ऑपरेटर का जो रोल है वो निकाल लें. आपके एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज हो जाएं. सिविल एविएशन का काम सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन करना है. वो एक रेगुलेटरी बॉडी है. आपने अगर PIA को सुधारना है, सिविल एविएशन की रेगुलेटरी बॉडी अगर ठीक हो जाएगी तो आपके 50% मसले हल हो जाएंगे. नंबर 2, सिविल एविएशन से रिलेटेड ही PIA पे मैं नंबर 3 पे आता हूँ. सिविल एविएशन में मिलिट्री बैकग्राउंड के लोगों की थोड़ा इन्फ्लक्स कम करें. सिविल एविएशन में कमर्शियल एविएशन ओरिएंटेड लोग चाहिए हमें, जो कमर्शियल एविएशन को समझते हों. ठीक है, आपने लगाए होंगे 30 साल, आपके पास होंगे 50,000 घंटे F-16 के, बट यू डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन कमर्शियल एविएशन एंड हाउ टू मेक फिजिबल बिजनेस प्लान्स व्हिच कैन वर्क टू बी a regulator and make efficient policies जिससे आपकी कमर्शियल एविएशन बढ़ सके. I'll be very honest and I'll be very blatant about it. ये चीजें आपको करनी है. हमारे पास पहले लोग ये कहते थे कि हमारे पास शायद लोग ऐसे नहीं हैं, हमारे पास लोग हैं. मैं जानता हूं उन लोगों को, मैं उन्हें अपनी पॉडकास्ट पे लेके आया हूं.
हमारे पास लोग हैं जो समझते हैं कि कमर्शियल एविएशन कैसे चलती है, लेकिन क्या है कि आप उनको आगे नहीं आने देते, आप उनको यूटिलाइज नहीं करते। पीआईए को अगर आपने ठीक करना है, आप उसका फैसला करें कि आपने उसको स्टेट ओन्ड रखना है या प्राइवेटाइज करना है। अगर आप उसको स्टेट ओन्ड करेंगे तो रेगुलेटर के पास डंडा होना चाहिए कि वो स्टेट ओन्ड एयरलाइन भी अगर है तो उसको भी जो है जबरदस्ती ठीक करे। अगर वो नहीं कर सकती, एयरलाइन को आप बंद करें और फारिग कर दें, आप एयरलाइन ना चलाएं। अपने कौम के ऊपर 60-70 अरब रुपए, जहां पे आपको वैसे ही इतना मसला है और आपकी वैसे ही जो आपकी इकोनॉमी है श्रिंक हो रही है, ऐसे हालात में आप इस तरह का जो एक वाइट एलिफेंट आपने पाला हुआ है, इसको काइंडली आप जो है ना वो निकाल दें। आपने, और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि रेगुलेटर को सख्त होना पड़ेगा, कमर्शियली ओरिएंटेड होना पड़ेगा, कमर्शियली वायबल पॉलिसीज देनी पड़ेंगी, ऑपरेटर का रोल निकालना पड़ेगा रेगुलेटर के अंडर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि आप खुद ही पॉलिसीज बना रहे हैं और आप खुद ही जनाब बिजनेस भी कर रहे हैं। ये चीज दोनों एक साथ नहीं चलती, दुनिया में कहीं भी नहीं चलती, कहीं पर भी ऐसा नहीं है, इवन गल्फ कंट्रीज में भी नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप जाएं और जहाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जो रेगुलेटर है वही सर्विस प्रोवाइडर भी है। सर्विस प्रोवाइडर का रोल सिविल एविएशन से खत्म होना चाहिए। भले लोग रोएं पिटें जो मर्जी करें कि जी सरकारी नौकरियां थी खतरे में पड़ जाएंगी, प्राइवेटाइज हो जाएंगी, अच्छा है हो जाए, क्योंकि ये सरकारी नौकरी का जो मंजन है, इसी वजह से लोग काम नहीं करते, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। लोगों को बस यही होता है कि भाई हम कुछ करें या ना करें, हमारी महीने की एंड पर तनख्वाह मिल जाएगी, अगर हमें नौकरी से निकाला जाएगा तो हम कोर्ट में चले जाएंगे, स्टे ऑर्डर ले लेंगे। जब तक ये विशियस साइकिल आप नहीं तोड़ेंगे, आपका कल्चर ठीक नहीं होगा। जब तक आपका कल्चर ठीक नहीं होगा, बहुत सारे 661 और 8303 और एयर ब्लू जैसे जो क्रैशेस हैं जो 2010 में हुआ था, वो होते रहेंगे। शायद एयरलाइंस जो प्राइवेट हैं वो सीख लें, वो अपने अंदर इस तरह के चीज़ों को बेहतरी में ले आएं, बीइंग अ प्राइवेट एयरलाइन। लेकिन सरकारी लेवल पे, स्टेट ओन लेवल पे, सिविल एविएशन के लेवल पे, पीआईए के लेवल पे ये चीज़ें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक आप अपने आप को पहले दिन से ठीक करना स्टार्ट नहीं करेंगे। That's it. Bilal, yeah, we leave it there. That's a perfect answer. Or thank you so much for joining us. Thank you so much once again, and you gave us your time. It was amazing discussion having you. And just to end it up, tell the audience where they can find you, where they can get in touch with you, because I'm pretty much sure after this a lot of individuals उनको एक inspiration create होगी या कोई guidance चाहिए होगी, they will love to interact with you. So just let them know. So if you want to find me, I believe you'll be putting my Of course, Insta handles over here. I'll give you those. You can contact me through my Insta handles or Twitter or Facebook. My both Aviation Geeks के भी और मेरे जो personal Insta handle जो मेरा user name है, वो सब platforms पे एक ही हैं. So you can find me through those. But if you want to find me on Google, you can just write Aviation Geeks. You'll find my website on the top, aviationgeeks1.com. And you can go there, you'll be able to find my blogs which I have written, you'll be able to find my videos which I do on YouTube. Same as on YouTube, you can just write Aviation Geeks on YouTube and you'll find me. Yeah, Bilal, thank you so much. Yeah, see you again.